Assalamu alaikum everyone. This is me Hadika Rukhsar from Bazi Editors. Heartiest congratulations for your admission. I welcome you all here in this session. We are going to discuss about the subjects that you will be studying in the first year, about the study roadmaps and the resources which you will be following. Like पढ़ना कहाँ से है basically they're the most frequently asked question, and also the study roadmap plus the paper pattern. We are going to discuss in this video. So make sure you watch till the end. First of all, I am going to discuss about the subjects that you will study. First subject is anatomy. Anatomy is such a vast subject. Other than anatomy, we have the physiology, biochemistry, and dental material, and oral biology. Dental material is studied in the first year, BDS and KMDC. But in other universities, we usually study about the oral biology in the first year. Okay? And oral biology in the KMDC, we study in the second year, basically. Okay? So anatomy is further divided into histology, embryology, general anatomy, neuroanatomy, and the gross anatomy. We have the following division in the anatomy. So this is covering the vast and the most important subject of first year BDS. So only head and neck is if you have a but volume 3, I guess. So I am going to discuss about the subject and the paper and the basically the books that you will be following. Okay. So for that, I am starting with the biochemistry first. For biochemistry, we have two books. One, you study the main book, that is our main textbooks. Another is a short book which help you in the Viva and also in basically remembering the concepts and like आपको easy learning में आसानी जो हो जाती है ना वो short book से जाती है ठीक है तो for the Lippincott is basically your main textbook for the biochemistry and Pike Amet is basically your instant biochemistry की short book है ये ठीक है so you have to study both books but subject क्या क्या पढ़ने like topics क्या included है आपके पास वो discuss कर लेते हैं आप we have two parts in biochemistry that is chemistry part and the metabolism part. So for BDS chemistry part that you can go from the you can go for the 5 every subject and every topic from 5 is really important. तो आपने सारे ही follow करने हैं वो ठीक है so but structure of proteins is chapter that I will suggest कि आप Lippincott से पढ़ो उसको क्योंकि वहाँ पे ज्यादा अच्छा दिया हुआ है कुछ चीजें मिसिंग है 5 में ठीक है तो you can go for the Lippincott कि आप उससे पढ़ लो ठीक है for the Lippincott से पर मेटाबॉलिज्म आपने दोनों से करना ही है पहले मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे लिपिनकॉट से आपके कार्ब्स मेटाबॉलिज्म लिपिड मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म ये सब कुछ आपने करना है लिपिनकॉट से एंड देन यू कैन रिमेंबर यू कैन मेक योर नोट्स एज वेल बट आप मेजर 5 से भी आपने पढ़ना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 तो पूरी की पूरी ही पढ़नी है आपने उसमें कोई वो नहीं है ठीक है बट मेटाबॉलिज्म के लिए यू हैव टू फॉलो द लिपिनकॉट तो आपको इजीली कंसेप्ट बनाने में इजी हो जाती है ठीक है फॉर द रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी बेसिकली निंजा नट इंटरनेट के बहुत अच्छे लेक्चर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी बट आपको समझ आ जाती है आप रिलेट कर सकते हो तो यू कैन गो विद देयर ठीक है सेकंड इज दी एमबीएस मेरी लेक्चर्स इनके बहुत से लेक्चर्स हैं बिजनेस मेरी कोर्स की वीडियोस बहुत अच्छी हैं सेल्फ टेस्ट रिलीज दोनों ही एंड लिपिन करके चार्ट फॉर योर रिवीजन रिवीजन के लिए कैन गो फॉर दी फाइक अहमद के चार्ट्स भी हैं वो भी कर सकते हो एंड लिपिन करके चार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्चर्स जगह उन्होंने बनाई हुई है तो बहुत अच्छा उससे भी आप रिलेट कर सकते पढ़ सकते हो डायरेक्टली अगर आपने रीडिंग नहीं करनी प्रॉपर पैराग्राफ्स की तो आप लिपिन के चार्ट से जो पिक्चर्स बनी हुई वो उनको देख लो ठीक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीनियर कोर्सेज इफ यू गाइस हैव अ सीनियर कोर्सेज एंड आपको कोई भी सीनियर आपको मिल जाते हैं वो उनके कोर्सेज लॉन्च हुए हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो आपको बहुत हेल्प हो जाती है कि आपको डायरेक्ट पूरा एक क्या कहते हैं उन्होंने पढ़ा हुआ होता है तो आपको पूरा प्रॉपर्ली गाइड कर देते हैं क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ठीक है सो नेक्स्ट अदर सब्जेक्ट दैट वी हैव इज एनाटमी सिंस आई टोल्ड यू कि एनाटमी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है आपके पास ठीक है तो फॉर द मेन टेक्स्ट बुक वी हैव हेड एंड नेक दैट इज द BD 84 की हेड एंड नेक वॉल्यूम 3 यू हैव टू फॉलो इसके अलावा जो शॉर्ट बुक्स शॉर्ट नॉट द शॉर्ट बुक इसके अलावा जो बुक्स वी हैव दैट इज द हैंडबुक हैंडबुक इज बेसिकली आपने बेसिक है ये तो आपने एनाटमी की जितनी बेसिक आपको आनी चाहिए वो सब कवर किया हुआ है हैंडबुक में ठीक है तो फॉर द प्लेन्स हो गए मसल्स के बारे में लिम्स के बारे में तो आपने बेसिकली बोन्स के बारे में तो आपको एक बेसिक एनाटमी आनी चाहिए कि प्लेन्स क्या क्या है एनाटमिकल लैंडमार्क्स क्या क्या है टर्म्स क्या कैसे होती हैं ठीक है तो उसके लिए आपको हैंडबुक प्रॉपर पढ़नी है ये ठीक है पूरी पढ़नी है भी लाइक आपको रीड करनी है उसको एंड आपके बाबा के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये ठीक है सेकेंड इज दी हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी के लिए वी फॉलो द लाइक्स फॉर पीडीएस ऑल्सो इसमें टॉपिक्स आपने सब नहीं करना पूरे बट फॉर द पीडीएस के लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आपने पढ़ना है बट आई विल से कि आपने नाइट्रोजन से ही पढ़ना है थोड़ा सा उसको ना याद करने में मसला होता है कि रिटेन नहीं होती है बट आपने नोट्स बना के पढ़ लो उसको तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आगे पढ़ना है वी हैव इम्ब्रोलॉजी के लिए शर्जील आई विल से कि शर्जील इज इनफ फॉर द पीडीएस आपने बेसिकली दूसरी सेकंड बुक आती है लैंग्वेज लैंग्वेज इज फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट नॉट फॉर द पीडीएस ठीक है तो आपने फॉलो करनी है शर्जील को टॉपिक्स क्या क्या है वो मैं बताती हूँ क्या पढ़ना है बट मेन जो बुक पढ़नी है शर्जील आपका पूरा बीडीएस बहुत अच्छे से नेट में निकल जाएगा इस बुक से भी ठीक है अच्छा फॉर द न्यूरो एनाटमी वी हैव स्नेल्स स्नेल्स बेसिकली बहुत अच्छी बुक है ये भी बट आपको न्यूरो एनाटमी के लिए गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए कि आपने पढ़ना कैसे है क्या क्या पढ़ना है
बेसिकली फॉर दिस स्नेल्स में आपने करना क्या है, एक सेकेंड। स्नेल्स में बेसिकली होता ये है कि आपको एंड में पढ़ाई जाती है समटाइम्स ये, ठीक है। तो एंड में इन सेंस कि आपको बिल्कुल ही लास्ट में बताया जाएगा इसके बारे में। तो आप इसमें जो है ना आपने ग्रॉस पढ़नी है मेजरली, ठीक है। ग्रॉस इज बेसिकली आपको बहुत इजीली आना चाहिए, ग्रॉस के सब जो टॉपिक्स हैं ग्रॉस के न्यूरो एनाटॉमी के, तो आपको कवर हो जाएंगे वो भी स्नेल से ही, ठीक है। कोई शॉर्ट बुक अगर मिल जाए तो उसे रिविजन कर लेना अपना, बट मेन टेक्स्ट बुक जो है वो स्नेल है न्यूरो एनाटॉमी के लिए, आपको रीड करनी है ना, आपको उसमें समझ पढ़ना भी है, ठीक है। इसके अलावा मॉडल्स होते हैं एनाटॉमी के अंदर, इसके अलावा आपको जो है ना डिफरेंट डिफरेंट एटलस की बुक भी एक है एनाटॉमी के लिए, वो भी आपने लेनी है, ठीक है। एंड उससे भी आपने डायग्रामेटिकली उसको पढ़ना है, ठीक है। फॉर द टॉपिक्स वी हैव हिस्टोलॉजी के लिए एपिथेलियम, पेनिट्रेटिव टिश्यूज, लाइब्रेरी ग्लैंड्स, थायराइड, लिम्फ नोड्स, इन सारे अब हमें कवर करने हैं फॉर द पीडीएस के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो एमबीबीएस के टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल सीएनएस की हिस्टोलॉजी पढ़नी नहीं है इतनी ज्यादा, एक सीवीएस सीएनएस इन सब की नहीं करना, लेकिन जो मेजर टॉपिक्स हैं एपिथेलियम, ग्लैंड्स, लाइब्रेरी ग्लैंड्स, थाइमस, थायराइड, लिम्फ नोड्स, ठीक है, ये सब कवर करना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर द ग्रॉस ये आपने पूरी की पूरी पढ़नी है, लेकिन इसमें कुछ वो नहीं है। अपने स्कल स्टार्ट करो, स्कल पे स्कैल्प, फेस, मैंडिबल, टंग, इसके अलावा ट्राइंगल्स, ठीक है, आर्टरीज, नर्व्स एंड मसल्स। आप मसल्स को ऐसे पढ़ना है कि बेसिकली आपको इसकी तरह मैं बताती हूँ इनमें, बट आपने ऐसे पढ़ने के भी टिप्स होने चाहिए। फिंगर ब्लड सप्लाई क्या है मसल की, नर्व सप्लाई कौन सी आ रही है, तो आपको प्रॉपर एक एक मसल के बारे में, टंग के मसल कौन कौन से यहाँ के, सुपियर थायराइड, इन्फीरियर थायराइड मसल कौन से हैं, तो आपको मसल्स के बारे में प्रॉपर गाइड होनी चाहिए अपने, ठीक है। हेड नेक के मसल कितने कौन से आ रहे हैं, ठीक है, उनकी सप्लाई क्या क्या है, ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है। इसके अलावा न्यूरो में पढ़ोगे इंटरनल आर्टरी के बारे में, और आपकी स्नेक आर्टरी फेस पे आती है वैसे नॉर्मली, तो आपने वो भी प्रॉपर पढ़नी है। ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा सारे टॉपिक्स आपने प्रॉपरली करने हैं, बट आपने ग्रॉस के लिए अपना स्केल्प स्केल्प जो पूरा स्केल होगा ना आपका, वो भी पढ़ना है आपने, ठीक है, ताकि उसमें प्लेन्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट आपको पता चल जाएंगे वो, तो आपने वो भी फॉलो करनी है, ठीक है। फॉर द एम्ब्रियोलॉजी, फॉर द बीडीएस के लिए तो एम्ब्रियोलॉजी में हमने फर्स्ट 1 to 8 वीक्स करने हैं, डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं, और इसके अलावा आपके जो पेरेंशियल आर्चेस, पेरेंशियल पाउचेस होते हैं उनके डेरिवेटिव्स मैं बता रही हूँ, तो वो सभी पढ़ना है, ठीक है। बट आपने जो है ना हेड नेक की जो डेवलपमेंट है, लाइक पेज डेवलपमेंट जो है वो पढ़नी है, इसके अलावा जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो नहीं पढ़नी होती है हमें, ठीक है। फर्स्ट 1 to 8 वीक्स ये आपको आने चाहिए, ठीक है। 1 to 4 तो बहुत अच्छे हैं, इसकी आप वीडियोस देख लो निंजा की, निंजा नट की, हाँ इसके अलावा डॉक्टर नजीब की वीडियोस है, तो आपको इजी हो जाता है वो, ठीक है। या तो अपने नोट्स बना लो डायरेक्टली आप, या फिर डायरेक्ट शेड्यूल से पढ़ लो, तो आपकी जैसे अप टू यू, कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। अगर ज्यादा पढ़ना है तो लैंग्वेज से पढ़ लो, बट आपकी शेड्यूल से प्रॉपर हो जाता है, उसमें जितना कवर कर देता है शेड्यूल आपको बुक, तो उसमें इतना मसला नहीं होता, ठीक है। बट सिलेबस क्या क्या है, 1 to 8 वीक्स है, डेरिवेटिव्स में पेंसिल पाउचेस हैं, आर्च आनी चाहिए, एंड फेस की डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फेस में टंग हो गई डेवलपमेंट, इसके अलावा मैंडिबल की डेवलपमेंट है, नोज डेवलपमेंट है, फेस क्या लाइक पूरा आई डेवलपमेंट भी कह लो, उसके अंदर हेड की डेवलपमेंट जैसे हो रही है, तो डेवलपमेंट आपको पढ़नी है प्रॉपर हेड नेक की, ठीक है। और द न्यूरो एनाटॉमी आई टोल्ड यू अबाउट द ग्रॉस सिंथेटिक, आपने इसमें भी ग्रॉस वगैरह स्ट्रक्चर कौन सा आपके ब्रेन के हैं, ठीक है। सेरिबैलम, बेसल गैंग्लिया, होम्यूनक्यूलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड सप्लाई, केन एंड नर्व्स। नर्व्स आपकी टिप्स होनी चाहिए, लाइक 1 to 12 नर्व्स जो केन हमारे पास है वो आपकी फिंगर टिप्स होनी चाहिए, उनके पाथवे बताना चाहिए, तो वो सब आपने न्यूरो का स्नेल से फॉलो करना है। अदरवाइज यू कैन आल्सो गो विद योर नोट्स एज वेल, ठीक है। अगर लेकिन बुक रीड करने नेसेसरी फॉर यू गाइस, बुक के बगैर तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बुक तो फॉलो लाजमी करनी है बुक तो, ठीक है। तो बुक से नोट्स बना लो, या रिटेनमेंट आपको मेजर रिटेनमेंट होती है बेसिकली कि आपने पढ़ के याद रखना है उसको, ठीक है। वो कैसे करना है ये अभी आके मैं बताती हूँ। अच्छा, अब पढ़ना मैंने कहा था कैसे है, तो बेसिकली लेक्चर नोट बनाने हैं अपने अपने, और लेक्चर लेने के बाद, ठीक है, मॉडल से पढ़ना है और एटलस से पढ़ना है। मॉडल्स बेसिकली आपको स्केल्प का, इसके अलावा स्कल, सॉरी नॉट स्केल्प, स्कल का मॉडल है, टंग का मॉडल हमारे पास है, मैंडिबल का मॉडल है। ये सारे मॉडल्स आपने प्रॉपरली देख के आइडेंटिफाई करके सूचना पता होने चाहिए, कि आप आइडेंटिफाई लाइक एक विजुअलाइजेशन भी रखो उसके अंदर, ठीक है। एटलस की पिक्चर्स बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं एटलस के ऊपर, एटलस की सारी पिक्चर्स लाइक फॉर द मसल्स, फॉर द नर्व्स, फॉर द ब्लड सप्लाई, फॉर योर स्ट्रक्चर जो नॉर्मल आपकी ग्रॉस है, फॉर द न्यूरो के भी जितने स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, टंग पढ़ रहे हो, अगर थायराइड पढ़ रहे हो, फेरिंग्स पढ़ रहे हो, लैरिंग्स पढ़ रहे हो, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ड्राई भी है कुछ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पढ़ने में मजा आता है, तो वो सब फॉलो करने फ्रॉम दी एटलस। इसके अलावा रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, ये तो लाजमी, इसके अलावा तो काम ही नहीं है, ठीक है। तो रिटेनमेंट तो आएगी नहीं इसके बगैर, रीड नहीं करोगे तो, ठीक है। डिस्कस करो, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, ताकि आपको इजीली रिटेन हो जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आपने बेनिफिट दूसरों का भी करना है और अपना बेनिफिट भी करना है, ठीक है। नोट्स बना रहे हो तो उनको शेयर भी करना है, ये नहीं कहते वाट्सएप से पास आगे आप शेयर करो, आप अपने दूसरों को पढ़ाओ, ताकि आपको भी बेनिफिट हो उससे, ठीक है। अच्छा, फॉर द सोर्सेज दैट यू विल बी फॉलोइंग इज द इंटरनेट अगेन, चर्चिया मेडिकल लेक्चर की मैंने पर्सनली खुद भी फॉलो किया था, बहुत अच्छे लेक्चर थे इनके, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी भी। और इसके अलावा आपको अगर नहीं मिलता कुछ तो आप पूछ लो डायरेक्टली। एनाटमी जोन के लेक्चर्स हैं, टीच मी एनाटमी, कैन हब की वीडियोस होती है, एनाटमी 3D मॉडल्स वेरी इंपॉर्टेंट, एनाटमी के मॉडल्स होते हैं, स्कल के मॉडल्स की भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर नाम मिले तो मुझे बता देना, हम लोग बना के आपको भेज देंगे, ठीक है। सीनियर के लेक्चर अगेन, ठीक है, सीनियर के लेक्चर अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरा एम्फसाइज होगा सीनियर के लेक्चर पे वो मोस्टली, ठीक है। लेकिन अब आपको कुछ और सोर्सेज मिल रही है तो आप वहां से फॉलो कर लो, दैट इज अप टू यू गाइस, ठीक है।
और द नेक्स्ट सब्जेक्ट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की भी अगेन दो बुक्स हमारे पास हैं, दैट इज आपके पास मेन टेक्स्ट बुक एंड दिस शॉर्ट बुक दैट इज फिरदौस। एनाटॉमी की कोई शॉर्ट बुक नहीं है, आपको सिर्फ हैंडबुक पढ़नी है, लेकिन पढ़ना सब कुछ एनाटॉमी के अंदर ही, ठीक है। अच्छा, फॉर द गाइडन इज योर मेन टेक्स्ट बुक फॉर फिजियोलॉजी एंड फिरदौस, मैंने कहा कि शॉर्ट बुक है ये, ठीक है। अब गाइडन में मसला ये होता है कि गाइडन बहुत लेंथी है, ठीक है, बहुत लेंथी है वो, उसमें रिटेनमेंट लाइक आपको नहीं आती, जैसे याद नहीं रहती है, आपको पढ़ के समझ आनी चाहिए वो, और पढ़ना भी है, ये नहीं कि इसको सब कर देना है, पढ़ना तो लाजमी है। क्योंकि फिरदौस में दिया हुआ है डायरेक्टली, फिरदौस में बहुत डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपको की पॉइंट्स में नहीं, उन्होंने एरो बना के लिखा हुआ है, तो आपको डायरेक्ट पढ़ते हुए समझ नहीं आते वो। तो फॉर दैट आपने पहले गाइडेंस से पढ़ो एंड देन उसको रिविजन के टाइप पे अपने रख लो फिरदौस साथ में। एंड फिरदौस से आपका वाइवा नहीं कर सकता है, लाइक वाइवा में आपको होता है कि बताना होता है, आपको याद होगा तो आप बताओगे ना, तो आपने बेसिकली फिरदौस से याद करके बताना है वो चीजें, ठीक है। तो वाइवा में हेल्प करती है वो, कंसेप्ट बनाने में, आंसर करने में हेल्प करती है, बट कंसेप्ट आपका मेन गाइडेंस से बनेगा, ठीक है। आप आपके पास गाइडेंस है बेसिकली, टाइप बहुत सारे हैं बीडीएस के लिए, क्योंकि बीडीएस में एक ही ईयर में आपने कवर करनी है पूरी गाइडेंस, पूरी एनाटॉमी और पूरी बायोकेमिस्ट्री आपने एक ही साल में पढ़नी है अपनी, ठीक है। तो आपने बस सिलेबस आपका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पीडीएस के, एज कम्पेयर टू एमबीबीएस बेसिकली, ठीक है। तो फिर फॉर द फिजियोलॉजी वी हैव बेसिक सेल यूनिट की पढ़ना लाजमी। मसल्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, हार्ट, सर्कुलेशन, रीनल, ब्लड, ब्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट कि ब्लड आप सिर्फ गाइडेंस से ना पढ़ो, या सिर्फ आप एक और बुक है जेपी, यू कैन ऑल्सो फॉलो फॉर दी ब्लड, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन के चार्ज बने हुए, बहुत प्यारे चार्ज बने हुए ब्लड के जेपी के अंदर, वो भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फॉर द जीआईटी आई विल से कि पहले उससे पढ़ लो फिरदौस गाइडेंस से, एंड देन यू कैन गो फॉर द फिरदौस या फिर जेबी से पढ़ लो, ठीक है। न्यूरो साइंसेज आप न्यूरो एनाटॉमी 20 फर्स्ट में पढ़ते हो अपनी, तो आपने बेसिकली न्यूरो भी यहीं पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है न्यूरो की। एंडोक्राइनोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी यूनिट सेल का, मसल्स, हार्ट और जीआईटी ब्लड, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। The next subject that we have is the dental material. We have only one book for dental material, that is the makeup, and the book is really dry, ठीक है, but ये है कि पढ़नी लाजमी है, so डिविजन नहीं बनाया हुआ बुक में प्रॉपरली, से पैराग्राफ्स दिए हुए, चैप्टर्स बहुत ज्यादा बांट किया हुआ बिल्कुल, बट आपने फॉलो करनी है मेकअप भी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बुक है वैसे तो, बट ये है कि बहुत ड्राई है, ठीक है, बट आपने सब्जेक्ट लाइक बहुत ड्राई है, बट आपने पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर द डिविजन दैट वी आई हैव लाइक मेड इट इजी फॉर यू गाइस, कि आपको समझ आ जाए कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। So for that you have to study uh, properly, ठीक है। तो सबसे पहले तो चैप्टर 1 to 4 दैट इज योर मेन बेसिक चैप्टर्स है, बेसिकली 1 to 4 चैप्टर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर रियली इंपॉर्टेंट, चैप्टर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ड्राई है, बट आपने पढ़ना है, इसको भी रीड आउट करने है, समझने की कोशिश कर लीजिएगा, बट अगर समझ आता तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इंटरमीडिएट चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अच्छा, फॉर द अदर दैट वी हैव इज बेसिकली सीमेंट चैप्टर, इंप्रेशन चैप्टर्स, ठीक है। इसमें कंपोजिट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंथेटिक पॉलीमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना, कवर सब कुछ करना है, ठीक है। बट कवर कैसे करना है बेसिकली वो मैं बता देती हूँ, कि पहले आपने चैप्टर 1 to 4 पढ़ लिए, उसके बाद यू कैन गो फॉर द सेमेंस, दैट इज 24 to 30 चैप्टर्स आर फॉर द सेमेंस के मटेरियल है, ठीक है। 16 एंड 19 इज बेसिकली इंप्रेशन मटेरियल, जो कि बहुत इजी, बहुत मजे का चैप्टर है इंप्रेशन का, तो आप ये फॉलो कर सकते हो प्रॉपर बुक से ही, तो बहुत समझ आ जाएगी आपको इसकी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज डेंटल अमलगम। अमलगम आप ऑप्शन हो चुका है, बट आपका चैप्टर बहुत ये देखिए मटेरियल पढ़ाना है ये, बट आपने प्रॉपर्टीज इसकी सारी चीजें एडवांटेज मटेरियल की, ये सब पढ़ना है आपने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज बेसिकली सेरेमिक्स पोर्सलीन, चैप्टर लेंथी है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। और रिजन लाइक कॉम्पोजिट के चैप्टर 22 23, ये दो चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। ये भी बहुत मजे के बहुत चैप्टर्स अच्छे हैं ये भी, तो ये फॉलो करने हैं आपने, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बेसिकली दी चैप्टर्स लाइक 12 13 एंड 14, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में डॉक्टर पानी से प्रेजेंट आ रही है वाले मेटल्स भी और ये भी, ठीक है। तो ये आपने फॉलो लाजमी करने हैं, एंड इनको भी प्रॉपर्ली पढ़ना है, ठीक है। डेंचर के बेस, डेंचर कैसे बनेगा, डेंचर की कैसे आपने फैब्रिकेशन करनी है, प्रॉपर इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है। फॉर द मेटल्स आई विल सजेस्ट कि आप लास्ट में पढ़ो, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपको याद करने में मसला हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये रिलेट नहीं होता है, ठीक है। तो मेटल्स आई विल सजेस्ट कि आप एंड में पढ़ो, चैप्टर 5 to 10, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे भी, ठीक है। बट स्टार्ट आपने सीमेंट से करना है, अमलगम से कर लो, डिजन से कर लो, या फिर आप अपने सिंथेटिक वाले चैप्टर से स्टार्ट कर लो, दैट आपका बेसिक चंक आपका निकल जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, फॉर द डेंटल मटेरियल में पढ़ना कैसे है, तो बेसिकली होता है ये कि डेंटल मटेरियल की प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और इसके अलावा जो आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है मटेरियल के बारे में, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने डिविजन बना के अपने चार्ट या अपने नोट बना के आपने इसको पढ़नी है, ताकि इजीली आपको समझ आ रही हो ये, वरना अगर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है इसको पढ़ना समझना, तो बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्शन भी आ जाती है, सब भी आ जाती है, तो आपने इसको प्रॉपरली सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द पीडीएस के लिए, बहुत ज्यादा चंक आपका बेसिकली मेजर पार्ट कवर कर रही है, तो आपने इसको प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है। एंड सिंस फर्स्ट ईयर में भी केएमडीसी में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, एंड बाकी यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर सेकंड ईयर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपने वहां पर इसको प्रॉपरली अपना रिलेट करके पढ़ना है इसको, ठीक है, फॉर द इंटरमीडिएट के लिए। नेक्स्ट दैट वी हैव इज बेसिकली रिसोर्सेज। इंटरमीडिएट आपको प्रॉपर लेक्चर नहीं मिल सकते, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्लेलिस्ट पूरी पूरी चाहिए तो आपको इंटरमीडिएट की नहीं मिलेगी,
ये ड्रॉबैक है, बट आप अपनी साइज भर सकते हो, इसके अलावा साइड शेयर से साइज निकाल सकते हो, वहां से भर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पर भी जाने की वीडियोस मिल जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल इंप्रेशन की वीडियोस डाल सकती हैं, सीमेंस के बारे में, अमेज़न कैसे आपने लगाना है या मतलब कैसे वैसे फैब्रिकेट करना है, आपको वो समझ आ जाएगा। कॉम्पोजिट के बारे में वीडियोस मिल जाएंगी, एचिंग कैसे करनी है। बट आपको प्रॉपर जो लेक्चर्स की वीडियोस हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, तो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी जनरल मटेरियल बेसिकली, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इसलिए मुश्किल लगता है इसलिए क्योंकि कोई प्रॉपर चैनल ऐसा है नहीं कि आपको जिससे गाइड आपको मिल जाए, ठीक है। सो फॉर दैट आपने ये करना है कि उसको पढ़नी तो फिर भी है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। अच्छा रिविजन कह नहीं है आपने बेसिकली इसको याद करने के लिए डेन जैसे करना है, तो आप पास से करो अपने, ठीक है। इसके अलावा अपनी पढ़ाओ, पढ़ने के बाद एंड में चार्ट बना लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है ये हमारे चार्ट है बेसिकली सीमेंट्स का। इसमें आपने बेसिकली एक अपनी कॉम्पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन के ऊपर, फायदा करना भूल गई, बट आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी हर एक एक मटेरियल के बारे में कॉम्पोजिशन फिंगर होनी चाहिए आपकी, कि वो बन कैसे रहा है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई हुई है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन आपने पावर पढ़नी है, प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस और उसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आप बना लो, ठीक है। तो आपने बेसिकली इसकी टाइप्स वगैरह जो भी हैं, तो आपने हर एक एक मटेरियल के बारे में इस तरीके के अपने चार्ट बनाने हैं अपने सीमेंट्स का, सीमेंट इसके अलावा इंप्रेशन मटेरियल्स के लिए, रेजन के लिए, अमलगम के लिए, ताकि आपको रिविजन के लिए एंड मोमेंट पे आसानी हो, ठीक है। तो उस पर मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी कि आपने रिटेन कैसे करना है इसको, ठीक है। पढ़ने के बाद तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये, बट वर्थ इट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज बेसिकली फॉर दी other subjects we have orobology. Orobology के दो divisions हैं बस, histology and morphology. Histologically we have two books, that is the Concave, that is the main textbook Concave से है, ठीक है। And the short book that is the TERS. अब जो कुछ लोग होते हैं TERS पढ़ते हैं, Concave नहीं पढ़ते, तो ये गलत है। आप इसी दोनों को कवर करके चलो, तो कौन सी चीजें कहाँ से पढ़नी है मैं बता देती हूँ आगे। अच्छा for the morphology we have the Fullers, बहुत अच्छी बुक है ये, बटनी थोड़ी सी बहुत अच्छी है, आपको सारी morphology के बारे में कि बेसिकली एनाटॉमी क्या है, लैंडमार्क्स के हैं, इंडिविजुअल के पढ़ने हैं, डेसिडस कौन से परमानेंट कौन से हैं, तो कितने दांतों के लिए खड़े के एनाटमी जो बेसिक लैंडमार्क्स हैं, अपने कास्ट कितने हैं, रूट कितनी है, हर सब में, तो वो सब आपने मोर्फोलॉजी में कवर करना है अपना, ठीक है। दैट इज द मेन आपका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, ठीक है। अच्छा फॉर हिस्टोलॉजी वी हैव दी, आपने यहाँ पे भी इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हेड एंड नेक की इम्यूनोलॉजी पूरी डेवलपमेंट होती है, इस तरह डेवलपमेंट होती है, आपने स्टेट से नहीं पढ़ना, ये डेवलपमेंट होता है तो आपने पढ़ना है 10 गेट से, लास्ट में टेस्ट में बहुत गंदा दिया हुआ है, बहुत खराब दिया हुआ है, बहुत ही बुरा, ठीक है। तो आपने वहां से नहीं पढ़ना, ठीक है। आपने पढ़ना है वीडियो से या तो, ठीक है, वीडियोस फॉलो जो करनी है बता देती हूँ मैं आगे, बट आपने मेनली इसको 10 के से लाजमी पढ़ना, जैसे फॉलो ना करो बहुत बुरा है, ठीक है। इनामल, डेंटिन, पेरिडोन्शियम, मिकोजा, सर्विलांस, मैस्टिकेटरी apparatus, ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्पेसिफिकली बोन बोन पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप से पढ़ लो, ओके फाइन है, बट आपने मेनली पढ़ना है इनको भी, ठीक है। तो इसकी मूवमेंट लाइक शेडिंग कैसे हो रही है, ठीक है, रिजॉर्प्शन कैसे होता है वो सब पढ़ना है, ये रिजनरेशन रिपेयर की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे जो ओरल सॉलिड टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, सब कवर करना है, ये सब कुछ करना है, ठीक है। जो बाकी तरह मेंशन मेंशन नहीं किया यहाँ पे, मैंने मेंशन फॉर एग्जांपल आपकी वो जंक्शन का चैप्टर है, ठीक है, तो वो सब छोड़ दे बेसिक, वो छोड़ सकते हो, बट ये सब कवर क्लास में करना है, ठीक है। ये डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ना है 10 के 8 से क्लास में, ठीक है। फॉर द ओरल मोर्फोलॉजी आई टोल्ड यू अबाउट कि आपने सारे टूथ के बारे में पढ़ना है, फॉर एग्जांपल हर एक एक टूथ के बारे में आपको आना चाहिए, लाइक मोलर्स हैं, मैक्सिलरी, मैंडिबल, कंपेयर करके पढ़ लो उनको भी, प्रॉपर्टीज हो उनकी, कितनी रूट्स किसमें है, कितने का इसमें है, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रॉपरली एक टूथ का आइडेंटिफाई करना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने कार्विंग भी कर दो टूथ की, लेकिन आपने आइडेंटिफाई भी करना है मॉडल के साथ साथ कि कौन सा मैक्सिलरी का मैक्सिलरी का मोलर है, ये मैंडिबल मोलर है, ये प्रीमोलर जो चार आपके पास है, ये मैंडिबल है, ये प्रीमोलर है, ठीक है। तो मैक्सिलर का मैंडिबल की किसके हैं ये, ठीक है। इन साइंसेस आपने पापा पढ़ने, तो नॉर्मली नॉर्मली आप साइड से कर लो या फिर बुक से पढ़ लो, एक ही बात है, बट बुक में अच्छा दिया हुआ है नॉर्मली चैप्टर और 1 2 चैप्टर जो बेसिक चैप्टर है ना मोर्फोलॉजी के, वो और सारे टूथ पढ़ने, ठीक है। तो वो आप वीडियो से कर लो, अगर आप इफ यू आर वीडियो पर्सन, आपको बेसिकली आना चाहिए, कहीं से पढ़ो आना चाहिए, मतलब पढ़ना आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अच्छा फॉर दी वीडियोस दैट यू विल बी फॉलोइंग इन द डॉक्टोस्कोपी की वीडियो, बहुत अच्छी वीडियोस हैं इनकी। और स्मार्टस के लेक्चर्स हैं, बाद वीडियोस के नोट्स फॉर दी बेसिकली हमारी वर्कशॉप है फॉर दी मोर्फोलॉजी, यू कैन गो फॉर दैट, फॉर द मोर्फोलॉजी की कंप्लीट वर्कशॉप है, उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सारी चीजें बताएंगे इंडिविजुअल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको 3D पिक्चर्स ऑफ योर लाइक 3D वीडियोस अबाउट द, इसके अलावा ऑन वीडियो एग्जामिनेशन एक पूरा प्रॉपर्टी आपको जो है मोर्फोलॉजी की एक मॉडल से पढ़ा है, ठीक है। और आपके नोट्स नोट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसके अंदर नोट्स बहुत अच्छे हैं, बुक से ज्यादा साइबर सेलेस के नोट्स वहाँ पे हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आप वो फॉलो कर सकते हो मोर्फोलॉजी के लिए भी। अच्छा नेक्स्ट फॉर द केम्ब्रिज स्टूडेंट्स वी हैव द पेपर पैटर्न, सिंस वी हैव केम्ब्रिज तो हमने पेपर पैटर्न केम्ब्रिज से रख दिया था यहाँ पे कि आपको हेल्प हो जाए वो भी। तो फिर बेसिकली आपका जो पेपर पैटर्न है ये सब्जेक्ट पेपर पैटर्न के डिवीजन क्या क्या बना हुआ है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए भी आप 2 बेसिकली वाइवा एंड आपकी ऑस्पी होती है, ठीक है। वाइवा के लिए बेसिकली 50 मार्क्स का वाइवा, 50 मार्क्स की ऑस्पी है, ठीक है।
वाइवा के लिए आपका इंटरनल बैठा होता है, क्या क्वेश्चन बैठा हुआ होता है। अब इंटरनल जो होता है बेसिकली आपका कोई भी मोस्ट चांसेस है कि आपका जो है ना, मोस्ट चांसेस होते हैं कि आपका कोई भी एचओडी होगा इंटरनल के तौर पे, इन एक्सटर्नल को भी बाहर से किसी और यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल को बुलाया जाता है आपके वाइवा के लिए, ठीक है। अच्छा, फॉर दी केमिस्ट्री वी हैव दी 100 मार्क्स का पेपर हो गया। फॉर द डेंटल मटेरियल वी हैव 200 मार्क्स पेपर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी डेंटल मटेरियल के 200 मार्क्स का पेपर होगा ये, ठीक है। अच्छा, 100 मार्क्स थ्योरी का, 100 मार्क्स वाइवा है, अनास्पी है। और उस पे आपकी हर ईयर डिपेंडिंग अपॉन द ईयर आपका चेंज होती है, सेम नहीं रहती है, ठीक है। हॉस्पी की वाइवा आपका चेंज हो सकता है, बट आपका जो थ्योरी पेपर है वो सेम रहता है हर ईयर। ये किसका चंक्स कौन सा बना रहा है मेजर, बट हॉस्पी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर दी अगेन यहाँ पे भी 3 इंटरनल है और बाकी एक्सटर्नल है एक, तो आपका वो हॉस्पी जो होती है बेसिकली इसमें आपके हर यूनिवर्सिटी वाइज आपको बता देंगे वो, फिर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि क्या क्या है। इसके अलावा आपके इंटरनल वैल्यूएशन के मार्क्स होते हैं 20 के 10 मार्क्स, जो भी आपके डिपेंड अपॉन कॉलेज कौन से कितने मार्क्स होंगे, ठीक है। और द एनाटॉमी भी अब अगेन 200 मार्क्स पे 100 से थ्योरी 100 पे वाइवा। वाइवा उस पे डिफरेंशिएट करेगी, एक एक 100 बैठा हुआ है, एक 100 बैठा हुआ है आपका, ठीक है। और एनाटॉमी में मॉडल रखे हुए होते हैं, तो आपने मॉडल्स लाजमी करके जाने हैं। न्यूरो के मॉडल जो के टंग का मॉडल है, मैंडल का मॉडल जो मैंने बताया, स्केल का मॉडल है, ये सारे मॉडल्स आपको पढ़ने हैं पहले ही पेपर से पहले, आपको आने चाहिए, वहां रखे हुए होंगे, आप आइडेंटिफाई करवाएंगे वो लोग, ठीक है। और देखो फिजियोलॉजी भी अब अगेन 200 मार्क्स पेपर, 100 पर वाइवा, ठीक है। इसमें भी से आपका जनरल एक्सटर्नल आपने वाइवा देना है जाके, एंड आपकी जो है ना स्पॉटिंग हो सकती है, स्पॉट हो सकती है वहाँ पे, तो आपने वो भी प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है। प्रोजेक्ट थ्योरी का टॉपिक मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, नेट में डिवीजन मैंने नहीं बताया। एनाटॉमी में बेसिकली आपका जो मेजर चंक कवर किया जाता है हेड एंड नेक, एक 40 to 50% इस कवर करते हैं हेड एंड नेक, तो मेरी बेसिकली हेड एंड नेक का मेजर चंक है वो, ठीक है। बाकी 40% आपका कवर करेगी फॉर योर क्या कहते हैं हिस्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जनरल एनाटॉमी की जो हैंडबुक है वो, और न्यूरो एनाटॉमी, ये 40% है। 60% कवर कर रहा है हेड एंड नेक। हेड एंड नेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेड एंड नेक के बगैर गुजारा नहीं है, तो हेड एंड नेक लाजमी पढ़नी है, वो आपका मेजर चंक बना रही है हेड एंड नेक एनाटॉमी डिवीजन में, ठीक है। एंटोमेट्री का एक ही बुक है, तो आपने पूरी फॉलो करनी है वो। केमिस्ट्री का आपका मेटाबॉलिज्म का पार्ट भी है, केमिस्ट्री पार्ट भी, डिपेंडिंग अपॉन के वो कैसा आता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वो पूरा प्रॉपर्टी दोनों पढ़ना है वो, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमी डेंटोमेट्री क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ना वही पढ़नी है। और फिजियोलॉजी आपकी यूनिट पे डिपेंड करता है, कि यूनिट से या फिर वाइवा का यूनिट का या आपका थ्योरी होगी, ठीक है। डिफरेंशिएट कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है, फिजियोलॉजी के लिए। तो ये आपने रात में करना है, ठीक है। अच्छा, पढ़ना है बेसिकली कैसे स्टडी हैबिट बनानी है अपनी, कि आपने बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, इन्हीं के रट्टा लगा रहे बैठ के फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपने बेसिकली प्रॉपर्ली चीजों को नोट्स बना के क्लास बना के अपने फॉलो करो, ताकि आपको इजीली रिवीजन में गाइड आसानी हो आपको, ठीक है। तो आपने वैसे पढ़ना है, राइज करना है अपने बेसिकली अपनी यूनिवर्सिटी लेवल एंजॉय करनी है, नीचे पढ़ते रहो आपने, आसानी से बेसिकली दुनिया से मैनेज करनी है बेसिकली, तो वो करना है। बाकी स्टडी कंसिस्टेंसी लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आपने छोड़ना नहीं है बीच बीच में, प्रॉपरली डे टू डे चैलेंज अपना देके टाइम टेबल बना के प्रॉपर पढ़ना है, ताकि आपको ईजी हो, ताकि पढ़ने में आसान ना हो, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, okay guys, there is a surprise for you all, and that is कि basically we will be conducting few lectures on some important topics, so that you can start your first year journey. I welcome you all in that lecture, so make sure that you all enter that lecture. It will not be taught, so join as many as you want. Okay, if you are interested, so DM us on the page, Instagram page. I will send you the link, and I will be conducting the lecture soon. ठीक है, lecture will be on the head and neck का topic होगा एक, DM का topic हो सकता है कोई भी, and फिर topic हो सकता है। If you guys want कि आप आपकी मर्जी का टॉपिक हो, तो you can suggest us any topic that you want. We will be making our lecture on that topic. But since हमने अपना मर्जी से करना होगा, तो फिर हम लोग आपको मोबाइल लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, जो भी हम सजेस्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे, that will we gonna the lecture. For the course that you can that will be shown on our page, you can follow us on Instagram. Since I told you, you can scan the QR code. Lastly, best of luck. One day all your work the best. Enjoy the first year journey, and one day all your efforts will pay off. Make sure you study hard, you study smartly, and I wish you all the best for your upcoming journey. So make sure you study well. Thank you so much for your time.